Honorable Union Minister for Power, New and Renewable Energy, Shri R.K. Singh Ji, Shri Alok Kumar, Secretary, Ministry of Power, Dr. Shekhar C. Mande, National President Vibha, and former Secretary, DSIR. Let me welcome everyone here to the verdant and green surroundings of this academic and research institution, which also houses the Pradhan Mantri Sangrahalaya. Atmanirbharta is not just economic Atmanirbharta. It's Atmanirbharta of mind also. Our minds have been colonized by the imperial rulers, and we have imbibed often their version of reality and have assumed it to be a given. We look at ourselves not with our own eyes, but lens of foreigners who imagined India to be a backward nation in many spheres, especially in philosophy and sciences. In this context, this movement to reconfigure the way we think and thus act, to recognize the wisdom contained in our philosophy and sciences is very important. The doctrine of Panch Mahabhut evolved in India to understand the diverse world of matter and its qualities. To understand the 5 elements, we have to understand creation itself, the interaction of Purush and Prakriti. And from that, the origin of these elements, the guna that they contain, and their interactions as creation evolved. Man, as a microcosm of the universe, also has these elements. The key point here is that we have all originated from the one. And the moment we recognize this unity, the disjointed, blinkered view of reality will dissipate. Today, we focus on Agni as the metaphor for energy. It is the primal force without which life itself could not exist. Growth is dependent on energy. However, our quest for a lifestyle focused on ever-increasing consumption has led to an unabashed exploitation of natural resources for energy. The balance in nature has been upset such that humankind is on the brink of a calamity. It is in recognition of this man-made disaster that India, as a responsible country, even though its per capita consumption of electricity is just 1/3 of the global average, has pledged net zero by 2070 to get its non-fossil energy capacity to 500 gigawatts by 2030, to reduce its projected carbon emission by 1 billion tons by 2030, and to reduce the carbon intensity of its economy by 45% by 2030. The idea of lifestyle for environment was introduced by the Honorable Prime Minister during the 26th United Nations Climate Change Conference of the parties COP26 at Glasgow last year. The primary objective of this campaign, the communication campaigns and outreach programs, which is going to be launched by the Honorable Minister today, is to build an awareness with the masses around the concept of Agni and its sub-themes, actively involving communities, educational institutions, and relevant organizations. Agni, that is power, that is energy, touches and impacts everyone in the country in urban, semi-urban, and rural areas. The proposed campaign will target all individuals and will be designed for a pan-India audience. The key message will focus on the concept of Agni. It's important as a life-sustaining force and will weave it seamlessly with power, which is a key driver of the economy. Sustainability will be the key theme. The campaign will conclude in Bangalore on 28th and 29th January 2023. Thank you. आदरणीय मंत्री श्री आर.के. सिंह जी, श्री आलोक कुमार जी, श्री सहाय जी, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तिगण, सर्वप्रथम विज्ञान भारती की ओर से मैं आप सभी का यहाँ सहर्ष स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपको बताया गया
कि विज्ञान भारती ये सुमंगलम का कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है, जिसके माध्यम से हम आप सभी लोगों के सामने में, हमारे देश के सामने में, हमारी जो परंपरागत पंचमहाभूतों की जो कल्पना थी उसको आपके सामने में ले आने की और कोशिश करेंगे। मैं और कुछ कहूँ इससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसकी परिकल्पना और इसके पूरे पीछे की जो शक्ति जो हमारे बहुत ही प्रिय श्री जयन जी सहस्त्रबुद्धे की है और रही है, जिससे हमें काफ़ी प्रेरणा मिलती है। श्री जयन जी सहस्त्रबुद्धे हमारे विज्ञान भारती के राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है। उनकी सेहत में थोड़ी कमी होने की वजह से आज वो यहाँ नहीं आ पाए हैं, लेकिन उनकी प्रेरणा हमारे साथ जरूर है इन पूरे कार्यक्रम को आगे ले जाने में। जैसे कि सहाय जी ने भी आपको बताया है कि अगर हम गए 200 साल का इतिहास देखें, एंड इफ़ यू लुक एट हाउ वी हैव इवॉल्व्ड इन लास्ट 200 ईयर्स, तो इसमें ऊर्जा का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है कि पावर एंड एनर्जी हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट important aspect of our development, or quote unquote development, what we see today in the world. And in the process, what the mankind has done is used natural resources very indiscriminately to utilize that power or the energy for our own benefit or our own comfort. In the last 200 years, we have increasingly used natural resources for our own comforts. However, अगर हम हमारी परंपरागत ज्ञान को अगर देखें, तो उससे ये पता चलता है कि हमारे परंपरागत ज्ञान में हरदम ये कहा गया है कि मनुष्य अपने आप को प्रकृति का एक अंग समझता है। We all consider ourselves to be part of nature, and that's our परंपरागत ज्ञान। और विज्ञान भारती का एक बहुत बड़ा प्रयत्न रहा है बरसों से कि टू ब्रिंग साइंस टू कॉमन पीपल इन ए ट्रू स्वदेशी स्पिरिट, एंड ऑल्सो द फिलोसॉफी ऑफ साइंस बिहाइंड, वी शुड मेक आवर पीपल अवेयर ऑफ दैट, हाउ इट हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड एंड हाउ इट हैज़ इवॉल्व्ड इन आवर कंट्री। एंड वी फर्मली बिलीव that if we are able to convince humanity of our own rich traditions and other aspects, it will be not only very good for humanity, it will be good for everyone else for the long-term sustenance of the planet itself. That's what our idea is. And in that particular respect, we have been organizing many events which actually take the proud achievements of Indian science to general public, our concepts to general public, and the concept of Sumangalam essentially arose out of that. And as I said, that हमारे परंपरागत ज्ञान में हमने अपने आप को प्रकृति का एक अंग समझा है. We have considered ourselves as a part of that nature, and therefore we don't use indiscriminately the kinds of things that we actually do today, that we use nature for our own purpose. And in that particular respect, we thought that एक अभियान चलाएंगे जिसको हम सुमंगलम कहेंगे, और इसके माध्यम से जो पंचमहाभूत है उसकी कल्पना एक बड़े स्तर पे सब आम लोगों के सामने में ले आएंगे. इसके पीछे की प्रेरणा भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री से भी हमें मिलती है, जिन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहा हुआ है कि जिस तरह से हम लोग आज प्रकृति का इस्तेमाल हमारे बेनिफिट के लिए कर रहे हैं वो सही नहीं है, और हमें कई रास्ते ढूंढने होंगे जिसकी वजह से हम लोग सस्टेनेबल पार्ट कर सके. एंड नॉट ओनली दैट, what our Honorable Prime Minister suggested in the General Assembly some years ago, that has been adopted as the mission statement as Mission Innovation, as all of us are aware. And also, as Sahaji mentioned, that 2070 we have targeted as zero net emission in 2070. And all of us really will have to work towards that particular dream that Honorable Prime Minister has set before all of us. From Vigyan Bharati, what we'll try to do is sensitize all the people, as I said, about the Panchamahabhutas. And today we are starting the work on Agni, which of course
has a very important place in our tradition, not only in nature, but also in our health and other different aspects in which Agni is extremely important. And we do hope that by sensitizing people, we will help people towards that sustainable world that Honorable Prime Minister has actually set before us, and by 2070, we'll be able to achieve that particular goal. We do hope that with the blessings of all of you, these programs of Sumangalam will be a good success. I would like to thank the Ministry of Power for helping us in this particular aspect, and we do hope that we'll engage with all of you, Vigyan Bharati will engage with all of you in this particular endeavor. Thank you all very much once again, and welcome to this program. आदरणीय मंत्री जी श्री आर के सिंह साहब, पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक श्री संजीव साहे जी, विभाग के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर शेखर सिंह मांदे जी, सभी महानुभावों, ये हमारे लिए अत्यंत प्रसन्नता का एक अवसर है कि यहाँ आज हम लोग अग्नि तत्व जो एक मूवमेंट है, कैंपेन है, उसके शुरुआत के लिए यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए हैं। और इसके लिए पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया का हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि उन्होंने इस आंदोलन, इस मूवमेंट के लिए, कैंपेन के लिए लीड ली है। और इसके साथ ही विद्युत मंत्रालय के जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं, उन सबके काफ़ी CMDs भी मौजूद हैं, हमारे स्पेशल सेक्रेटरी भी हैं, सभी लोग इसमें जुड़े हैं। इस कैंपेन के बारे में जो रूपरेखा है, जो इसका महत्व है, जो इसका कॉन्टेक्स्ट है, वो डॉक्टर शेखर ने काफ़ी अच्छी तरह यहाँ रखा है। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि हम लोग अग्नि को का जो रूप है वो एनर्जी के रूप में देखते हैं। और जैसा माननीय मंत्री जी कई बार कहते हैं कि हमारे जीवन में जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो हम कल्पना नहीं कर सकते बिना ऊर्जा, बिना एनर्जी के वो किस तरह से हो सकती हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी से लेके जितने हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं, जो भी हमारा मेडिकल केयर है, हमारा डिफेंस सिस्टम्स हैं, सबके लिए एनर्जी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि एनर्जी की जब बात करते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, तो एनर्जी ट्रांजिशन की बात हर मंच पे, हर फोरम में आती है। और अक्सर अगर आप ट्रैवल भी करें, किसी ट्रेन में बात करें किसी लोगों से या कहीं भी जाएं, तो ये एक आम धारणा हो गई कि एनर्जी ट्रांजिशन, जो रेस्पॉन्सिबल एनर्जी ट्रांजिशन है, वो एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। आप अगर देखें कि चाहे जितना भी रीडिंग मटेरियल है, न्यूज़पेपर्स हैं, मीडिया है, सोशल मीडिया है, उस सब में ऐसा एक धारणा बन गई है, ऐसा एक परसेप्शन बन गया है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो रेस्पॉन्सिबल एनर्जी ट्रांजिशन के लिए हमें सिखा रहे हैं। ये धारणा गलत है। तो और जितने वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जो इस बात को लिए बहस करते हैं, जो प्रीच करते हैं, उनमें से कुछ इन्हें उन्हें देशों को छोड़ दें तो वो अपने आप के लिए कुल लिप सर्विस करते हैं, लेकिन भारत जैसे देश को वो पाठ पढ़ाते हैं कि एनर्जी ट्रांजिशन कैसे आप रेस्पॉन्सिबल ट्रांजिशन किया जाए। हमें इस बात का गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे दुनिया के सामने जो COP26 में और पेरिस एग्रीमेंट के समय जो बात रखी, उससे भारत की जो गौरवमयी परंपरा है, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारी सोच है, उसको बहुत गौरवपूर्ण तरीके से विश्व के सामने रखा कि नहीं, भारत ऐसा देश है जिसको किसी पश्चिमी देशों के भाषण की ज़रूरत नहीं है। हम लोग खुद बहुत जिम्मेदार देश हैं, बहुत जिम्मेदार संस्कृति है। यही इस जो पूरा कैंपेन है, जो स्वमंगलम का, जिसके अंतर्गत अग्नि तत्व का हम लोग कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं, यही उसका एक
मुख्य बात है, मुख्य संदेश है कि हम दुनिया को बताएं, अपने नागरिकों को बताएं, अपने समाज को बताएं कि अपनी प्रकृति को बचा के रखना और अपना रेस्पॉन्सिबल एनर्जी कंजम्पशन जो है हमारी अपनी पुरानी संस्कृति, उसको भूलना नहीं चाहिए। और दुनिया को बताएं कि अरे हम लोग खुद जिम्मेदार हैं, आपको हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग उसको कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। इसी कॉन्टेक्स्ट में जो ये बात रखी है माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, वो एक बहुत महत्वपूर्ण कैंपेन है और मेरा मानना है कि उस कैंपेन को चलाने के लिए जो हम लोग भी जो आज जिसकी शुरुआत कर रहे हैं, हमारा सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए स्कूल गोइंग चिल्ड्रन पर। अगर हम अपनी जनरेशन को देखें, जब हम लोग स्कूल में थे, पढ़ रहे थे, तो एक एरा थी जिसमें जो नियो रिच लोग फैमिली से आते हैं और पंपोस कंजम्पशन था, उसको लोग बड़े फ़क्र से देखते थे, रोल मॉडल था कि इसकी बड़ी गाड़ी है, ये कैसे कपड़े पहनता है, इसका बड़ा घर है, बड़ी एनर्जी खर्च कर रहा है। उसको हमें वापस ले जाना है। जो हमारे अपने जो स्कूल हैं, जब बच्चे पढ़ते हैं, उनका वही माइंडसेट है, वही इस भारत को आगे चलाएंगे। हमें इस कैंपेन में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो हमारे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, उनके अंदर हम ये कैसे भावनाएं बिल्कुल उनके अंदर भर दें कि पंपोस कंजम्पशन इज़ नॉट द रोल मॉडल, रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन इज़ द रोल मॉडल। अगर हम लोगों ने ये कर लिया, क्योंकि वही जनरेशन आगे आनी है, तो फिर भारत का भविष्य सुरक्षित है। तो मैं आपको ये उदाहरण देंगे, हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाते हैं हर साल 14 दिसंबर को। तो उसमें बच्चों को इसके साथ जोड़ने के लिए एक पूरा कंट्री वाइड पेंटिंग कंपटीशन होता है। पिछले 2 सालों से वो पेंटिंग कंपटीशन हम लोग बहुत छोटे स्केल पे कर रहे थे कोविड की वजह से। इस साल हम लोग उसके पूरे वृहद स्केल पे हम लोग करने जा रहे हैं और हमने प्रस्ताव किया है कि इस बार पेंटिंग कंपटीशन का थीम लाइफ होना चाहिए, क्योंकि इसमें लाखों बच्चे पूरे भारत में जुड़ेंगे। और अगर हम लाइफ जो मूवमेंट प्रधानमंत्री ने शुरू किया है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, उस पर अगर हम आधारित पेंटिंग कंपटीशन कराएं तो ये शुरुआत हो जाएगी कि एक बहुत बड़ा जो मैसेज है वो हमारे सभी स्कूली बच्चों को पहुंच जाएगा। इस कैंपेन को चलाने के लिए जो भी इसमें सपोर्ट चाहिएगा, एक्टिव, प्रोएक्टिव, पैसिव, जो भी, वो पूरा हमारा विद्युत मंत्रालय माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हम लोग पूरा इसमें जुड़े रहेंगे, पूरा योगदान करेंगे। और जैसा बताया कि इसको कई जगह करने जा रहे हैं, मुझे बताया कि शायद अब पहला लेह में करने जा रहे हैं आप लोग, शायद इसका लेह में करने जा रहे हैं, कई जगह करेंगे। तो वहाँ पर हम लोग पूरा हमारा जो संगठन, हमारा जो मंत्रालय है, उसके अंदर जैसे पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया, सभी लोग पूरा जुड़ेंगे। और मैं इस अवसर पे इस कैंपेन की सफलता के लिए अपनी पूरी शुभकामनाएं देता हूं और आश्वस्त करते हैं कि हमारा पूरा जो मंत्रालय और पूरा जो संगठन है वो इसमें सही परिप्रेक्ष्य में जो एनर्जी ट्रांजिशन के लिए हमें काम दिया गया है, रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन का दिया गया है, उसको आगे बढ़ाने के लिए और अपनी जो नई पीढ़ी है उसको इससे जोड़ने के लिए पूरा इसके लिए हम कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अग्नि तत्व अभियान का शुभारंभ होने जा रहा है, इसकी शुरुआत होने जा रही है। हम निवेदन करते हैं माननीय मंत्री जी से एवं मंचासीन हमारे अन्य अतिथियों से कि कृपया ब्रोशर का अनावरण कर अग्नि तत्व अभियान की विधिवत शुरुआत करने की कृपा करें। हम निवेदन करते हैं कि दर्शक दीर्घा में, ऑडियंस स्टैंड्स में जितने लोग भी बैठे हैं, आप भी अनावरण का हिस्सा बने। कृपया अपनी अपनी जगह पर आप लोग सब खड़े हो जाएं और इस ब्रोशर को सामने की तरफ लेकर इस अनावरण का एक हिस्सा बन जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री
संजीव सहाय जी, डीजी पावर फाउंडेशन, आलोक कुमार जी, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पावर, शेखर मांडे जी, साथियों, भाइयों और बहनों, आज इस मूवमेंट को हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। इसे मैं मूवमेंट कह रहा हूँ वेल एडवाइजेडली, because I want this to be a movement. Not only me, I mean our government wants this to be a movement. Our Prime Minister wants this to be a movement. It's a movement back to simplicity. It's a movement which again will put forth the message that this world has enough for our need, but not enough for our greed. यह एक मूवमेंट और इसको हमको मूवमेंट के रूप में चलाना है। ये आलोक जी ने सही कहा, इस मूवमेंट में हम लोगों को स्कूल के बच्चों को भी लेना है, क्योंकि भविष्य वही। जगह जगह आयोजन तय किए गए हैं, उसमें कुछ एडिशंस करके हम लोगों को जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रोमिनेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, नॉट ओनली स्कूल्स बट ऑल्सो कॉलेजेस, ताकि वहाँ भी चिंतन हो। स्कूल्स में तो इम्प्रेशनेबल माइंड्स हैं, हम अपनी मैसेज कर सकते हैं। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में वो लोग मैसेज हम कहेंगे, उसको डिस्कस भी करेंगे, आत्मसात भी करेंगे। और वो अगर आत्मसात कर लिए, अगर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स आत्मसात कर लिए, तो समझिए कि हमारा आधा काम हो गया, because they will be the leaders of tomorrow. ये मूवमेंट क्या है? ये मूवमेंट क्यों है? Today the world is in trouble, environment is in trouble. You know, we are facing the problem of climate change. It's not our doing, ये हमारे किए की नहीं है। जो CO2 जमा हुआ है एटमॉस्फेयर में, उसका 85% डेवलप्ड वर्ल्ड से आया है। हमारी आबादी दुनिया की, हमारी जनसंख्या दुनिया की 17% है, 17.7%। और जितना CO2 एमिशंस, लेगेसी एमिशंस अभी जमा है, वो जाता नहीं है, वो जमा रह जाता है। उसका 3.25% ही हमने कॉज किया है, 85% तो ये डेवलप्ड कंट्रीज़ ने कॉज किया है। लेकिन समस्या तो है, ये समस्या है। ये समस्या क्यों है? समस्या, why has this problem arisen? I mean, this problem has arisen because of man's hubris, humankind's hubris, pride. Humankind started trying to modify the environment to suit his requirements. Now, you can modify the environment to some extent. They didn't realize, mankind did not realize that if you modify the environment or if you mess with the environment beyond a certain level, it will start hitting back at you. You can draw only so much of groundwater, but if you overdraw groundwater, then there will be desertification. And that is something which we forgot. So what happened was that we started consuming much more than we needed to, actually. As I said, I mean, there was enough for our need, but not beyond that. Our per capita consumption of energy and therefore our per capita consumption, their per capita emissions went up. And that's what's caused this carbon CO2 overload. ये जो developed countries हैं, और development का paradigm यही बन गया है. What is the development paradigm today? The development paradigm today is you increase consumption. आप और सामान खरीदें, और चीज़ें खरीदें. आप एयर कंडीशनर को 18 डिग्री पर चढ़ा करके सूट पहने, instead of living normally. I mean, make it so cold that you have to wear a suit or use a blanket. I mean, it doesn't make sense. It is actually totally foolish. लेकिन आप जहाँ कहीं भी जाइए, आपको यही नज़र आएगा. अभी मैं गया था पटियाला, और रास्ते में हमको रात में चंडीगढ़ में रुकना पड़ा, और वहाँ होटल में 18 डिग्री पर टेम्परेचर चल रहा है. अब हम कंबल ओढ़ करके सोए. I just imagine the foolishness of it. You are wasting energy. I don't know why we do it. हम क्यों करते हैं, इसका हमको लॉजिक समझ में नहीं आया. कोई हमको समझा दे, लेकिन हम करते हैं. अब एक परिवार है, एक गाड़ी पर्याप्त है.
लेकिन 4 गाड़ी चाहिए, SUVs चाहिए, क्योंकि बड़ी गाड़ी होगी तो हमारा कद बड़ा होगा। यही इसके पीछे यही है। हम एक छोटे परिवार हैं, लेकिन बड़ा बंगलो चाहिए, और जिस कमरे में है सिर्फ वही हीटेड या कूल्ड नहीं होगा, पूरा बंगलो हीटेड और कूल्ड होगा। क्या क्या तुक है ऐसा? ये क्या है? व्हाट इज दिस? और यही लाइफस्टाइल हो गया है। दिस हैज बिकम द लाइफस्टाइल। द थिंग इज दैट दिस इज नॉट अस। ये हमारा कल्चर नहीं है, हमारा कल्चर नहीं था, आज भी नहीं है। अगर आप हम लोगों के साइकोलॉजी में देखेंगे तो आज भी नहीं है। आज भी जो संत है उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं। जो संत है और जो कि सिर्फ एक धोती पहनता है, ऊपर कुछ नहीं पहनता, उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं। आज भी आप जाएं गांव में और वहां देखेंगे सिंप्लिसिटी की रिस्पेक्ट है, कदर है। आप सूट बूट पहन करके जाएंगे तो आपको वोट नहीं देगा कोई, नहीं, कोई नहीं देगा। हम तो चुनाव, आप सिंपल रहेंगे तो आपको वोट मिलेगा, और अंदर से सिंपल रहना। अगर आप फ्रॉड सिंप्लिसिटी करेंगे तो वो भी पब्लिक जान जाती है, फिर आपको वोट नहीं मिलेगा कि नहीं साहब से ये तो दिखावा करते हैं। ये तो हमारी जो कल्चर है, यही इसी कल्चर का एम्बॉडीमेंट है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। हम ऐसे ही रहते आए, ये हमारे जहन में है, ये हमारे अंतर्कन में है। हम लोग नेचर को हमेशा रिस्पेक्ट देते आए हैं, उसकी पूजा करते आए हैं, चाहे सूर्य देवता हो, चाहे वरुण देवता हो, चाहे पेड़ हो, पौधे हो, हम लोग सबको रिस्पेक्ट करते आए हैं। ये हम लोग हैं। हम लोग नेचर के हर एस्पेक्ट को रिस्पेक्ट करते हैं, और हम लोग सिंप्लिसिटी को रिस्पेक्ट करते हैं। जो सिंपल खाना खाता है उसको रिस्पेक्ट करते हैं, जो सिंपल ड्रेस पहनता है उसको रिस्पेक्ट करते हैं। और यही एक मंत्र है जो कि हमको पुनः अपने देश में भी देना है और दुनिया को भी देना है। दैट इज द मैसेज। और तब क्या होगा कि ये जो जिस ताबड़तोड़ गति से हम CO2 का एमिशंस कर रहे हैं, वो ताबड़तोड़ गति से CO2 का एमिशंस हम नहीं करेंगे। हम नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हमने कहा, हमारे एमिशंस तो 1/3 ऑफ द वर्ल्ड एवरेज है, हम नहीं कर रहे। अब प्रश्न यह है कि हम तो ठीक है साहब, हमारा तो ये नेचर ही है, सिंप्लिसिटी को हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमारे यहाँ तो हो जाएगा। जो लोग अभी इतना एमिशंस कर रहे हैं, 5 times द वर्ल्ड एवरेज, 6 times द वर्ल्ड एवरेज, उनमें उनके देशों में होगा या नहीं? सवाल दुनिया के सामने ये है। और हम लोग जबकि बात करें उन डेवलप्ड कंट्रीज से या उनके मंत्रियों से या उनके पदाधिकारियों से, तो उनसे ये पूछें कि आप ये बताइए कि आपके पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन और आपके पर कैपिटा एमिशंस कब होंगे, कम होंगे या नहीं होंगे। हमारी समस्या ये है, दुनिया की समस्या ये है। दुनिया की समस्या ये इंडिया में नहीं है, दुनिया की समस्या यूरोप में है, यूनाइटेड स्टेट्स में, या दुनिया की समस्या डेवलप्ड कंट्रीज में। तो हम लोग को आवाज़ उठानी होगी कि साहब ये नहीं चलेगा। हर फोरा में अब प्रधानमंत्री ने उसको प्रारंभ कर दिया, ये कह करके लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। किसी को उसका उत्तर नहीं है। कोई किसी से डेवलप कंट्री के किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए तो उसके पास उसका उत्तर नहीं है कि भाई आप 4 SUV क्यों रखते हैं? क्या आप ये नियम बना सकते हैं कि एक परिवार में एक ही SUV रहेगा या एक ही गाड़ी रहेगी? वो लेकिन नहीं करेगा। हमको नहीं लगता है कि वो करेगा, क्योंकि उनको ये आत्मसात करने में कठिनाई है। उनका जो ये मॉडल है, इकोनॉमिक मॉडल है, समस्या उसमें है। इकोनॉमिक मॉडल में उनका इकोनॉमिक मॉडल कंजम्पशन को प्राइमेसी देता है। आप लोन दीजिए, इंस्टॉलमेंट पर दीजिए। आप ये मोबाइल 1.5 लाख की है, इंस्टॉलमेंट पर मिल जाएगा साहब, इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट। आपको सिर्फ 4,000 रुपये महीने लगेंगे। तो हमारे लोग भी वैसे ही हो रहे हैं। अब उनको बचाना है उससे, लेकिन वो दुनिया वैसे ही रहते आई, जो डेवलप्ड वर्ल्ड है ये वैसे ही रह रही। उनको कैसे हम चेंज करें, ये समस्या दुनिया के सामने। और हम लोगों को ये खुल करके कहना चाहिए, अपने आप को ठीक करना चाहिए, ताकि हम उनको फॉलो नहीं करें, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करें, और उनको बताना चाहिए कि ये गलत है। ये हम लोगों को करना होगा। ये ट्विन ऑब्जेक्टिव्स है। द फर्स्ट वन इज सिंपलर। I mean, we can convince our people, because our people, their psychology is this way. Their psychology is such that they
like simplicity. The psychology is such that they like truthfulness. It's only in India that you could have a movement which is based and founded on ahimsa. Only in India. You can't have such a movement anywhere else in the world. कहीं नहीं हो सकता ऐसा. इंडिया में हो सकता है और इंडिया में हुआ. It's only us. We are different. And we are not only different, we are better. That's what I think. It's just that we have to prevent ourselves from aping and copying the West. And we have to prevent the younger generation from aping and copying the West. And then, maybe hopefully, sometime in the future, some sense will return the West. Now, despite all this, as far as we are concerned, in energy transition, we have emerged as a leader. We have emerged as a leader. What we pledged that we shall do by 2030, we did by 2021. We had pledged in COP21 in Paris that by 2030, 40% of our established capacity for power generation will come from non-fossils. We achieved that in November 21, 9 years in advance. Our rate of, we had pledged that we shall reduce the emissions intensity of our economy by 33 to 35% by 2030. Now we achieved that. And we're already at 30%, so we'll achieve that in just about 1 more year or 2 more years. Now that is why we have upped our ambition. And now we say that by 2030, 50% of our established capacity will come from non-fossils. Actually, it will not be 50. Actually, it will be 62%. So we will overachieve again. And we have pledged that by 2030, we'll bring down the emissions intensity of our economy by 45%. Actually, we shall be bringing down by at least 50% the emissions intensity of our economy. So despite, polluting the least, despite emitting the least quantity of CO2 per capita, we are the fastest in energy transition. That shows our commitment to the environment. That shows that, yes. And that also has been possible because of one thing. We don't appreciate our qualities. We are experts at deriding ourselves. Can you imagine, there's no other country in this world where there's such unanimity across all political, shades. There's unanimity that, yes, environment is important. Nobody, there are state governments of different hues, different political parties, are in office in different states. But not one state government has turned around and told me that, look, this talk about environment being in danger is all nonsense, or that I don't believe that we have to carry out an energy transition, my view is that this transition to renewable energy is bogus and buncombe. Not one state government says it. Not one political party says this. You compare yourself with other developed countries, you have one political party saying that, yes, environment is in danger, and there's another political party which was in office just before this, which said, what global warming? There's nothing called global warming. And this is about the most, powerful nations in the world. And if that party comes back again to power, again they'll revert back to the earlier philosophy. But we are different. We are different. Now that is something which we have got from our forefathers, this understanding, this sort of, communion with nature, this unity with nature. My only request is that let's stick to what we are instead of trying to copy systems which are not healthy for the world, not healthy for the climate, not healthy for the environment. We should not be aping the West or their consumerist lifestyle. We have to go back to what we actually are. Now, this is the start of a movement, and let this movement be as strong as possible. So I would urge the ministry as well as the foundation to carry this message across around the country. It is this which we have to do if we have to preserve our soul and if we have to preserve, this planet. Thank you. Thank you very much.
बेहद सुंदर प्रस्तुति, मेरे पास शब्द नहीं है, शब्द कम पड़ गए हैं। इतनी सुंदर प्रस्तुति आज इन सभी ने की है, जोरदार तालियां होनी चाहिए पद्मश्री माधवी मुदगल जी के लिए और उनकी पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर। I'm a choir from music foundation called Manzil Mystics, and we are here to sing some songs, and I hope you all will enjoy this song. Thank you.
Our next song is Andhere Jahan Mein Hum. एक शम्मा जला दे
थैंक यू सो मच। और सभी बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। Our next song is Ilahi. इसी बात पर मैं कुछ कहना चाहूंगी, इसी सुंदर बात पर। कहते हैं कि छोड़ोगे हाथ मेरा तो दुनिया की भीड़ में खो जाऊंगा, छोड़ोगे हाथ मेरा तो दुनिया की भीड़ में खो जाऊंगा, थपथपाओगे पीठ मेरी तो गोद में तुम्हारी सो जाऊंगा, चलाओगे जिन राहों पर, चलाओगे जिन राहों पर, उन राहों का हो जाऊंगा मैं तो एक कोरा कागज हूं, मुझ पर जैसा लिखोगे मैं वैसा हो जाऊंगा। जोरदार तालियां इन सभी प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों के लिए। थैंक यू सो मच। और हम निवेदन करना चाहते हैं सेक्रेटरी पावर से श्री आलोक कुमार जी से, कृपया मंच पर आकर इन सभी बच्चों को आप प्रशंसा का प्रतीक, एक स्मृति चिन्ह, एक छोटा सा उपहार मुझे कहना चाहिए, वो प्लीज़ प्रेजेंट करने की कृपा करें। और हम निवेदन करते हैं श्री संजीव नंदन सहाय जी से, कृपया आप भी हमारे साथ मंच पर पधारें। इन सभी बच्चों के नाम मैं एक एक करके लूँगी और उस क्रम में ही आप आगे आएंगे और सर आपको एक प्यारा सा गिफ्ट देंगे, ठीक है? सबसे पहले शबनम। प्रिया। प्रिया। और बैग्स पहन लीजिए, सारे बच्चे बैग पहन लीजिए। मल्लिका। आदि। सब बच्चे बैग पहन लीजिए। मानस। मानस। जोरदार तालियां। आसवी। आसवी। अभिज्ञान। अंजिका। और अंत में संसार। और इनके बाद यज्ञ। सभी बच्चों के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। सभी बच्चों के चेहरों पर एक बहुत ही मीठी सी मुस्कुराहट है। इसी के साथ हम इस सुंदर से कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं और